So in this question, it says given the marginal cost function f dash x, find the total cost function when fixed cost is 50 units and f dash x is equal to this thing. Acha, in the previous video, I have already said that if we have the marginal revenue, marginal cost or marginal revenue, so the total cost can be found out by integrating the marginal revenue. That is what I said. Because previously, while doing the chapter differentiation, we found out if the total revenue was given, then the marginal revenue was what? Marginal revenue could have been found by differentiation. By differentiation. So by integration, we will get the total cost if we have the marginal cost. Okay, because integration is the reverse process of differentiation. तो यहाँ पर marginal cost function they have given, that is f dash x. So f dash x, f dash x means what? dfx dx, dx. So x is the output, x being the output produced, and fx, when you integrate this thing, so what happens is that you get fx. So f dash x is what? F dash x is my marginal cost, so this fx will be my total cost. So we need to integrate the marginal cost to get the total cost. So let us integrate this f dash x. So what we have, the total cost is equal to integration of f dash x dx. So that is equal to integration of 2 plus x square dx. So now what I will do, अब इसको सेपरेट करेंगे, तो इसको सेपरेट करने से क्या मिलेगा? 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx. तो ये आया. अब ये 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 को मैं बाहर निकाल दिया. तो अगर कुछ नहीं है उसका मतलब क्या है? 1 है. तो प्लस इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा? x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1. एंड एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1. एंड मैंने बोला था कि हमेशा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये डेफिनेट नहीं है. क्यों ये डेफिनेट नहीं है? क्योंकि इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं है, तो ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है. तो इनडेफिनेट है तो मेरे पास प्लस सी आएगा. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है? आई टोल्ड यू इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स प्लस दिस वन इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 plus C. So this is my total cost. Now they have said that the fixed cost is 50 units. Now this fixed cost, what does it mean? So this total cost, I already told you, we got the value of fx. अगर f dash x को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें fx मिलेगा. तो फिक्स कॉस्ट 50, इसका मतलब ये है if you produce no output at all, so it means what? X is equal to 0. So when x is equal to 0, so see what happens. So f of 0 is equal to 2 into 0 plus 0 square by 2 plus 0 cube by 3 plus c, right? तो यहाँ पर क्या बोला है? So what do you get? f0 is equal to c. So this f0 is what? This f0 is the total cost if you produce nothing. So basically that f0 means what? That f0 is the fixed cost. So therefore you got the value of c as 50. तो अब मेरा एक्चुअल आंसर क्या होगा? हेंस fx इज इक्वल टू, जो मेरा टोटल कॉस्ट है वो हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 50. तो दैट्स हाउ वी डू इट. तो ऐसे करके मुझे टोटल कॉस्ट मिला when the marginal cost function was given. Actually, let me do the next question now. Okay, this one. So again the marginal cost function of a firm is given as 2 plus 3 e to the power x, where x is the output. हमेशा x output ही होता है. Find the total average cost function. तो मुझे total average cost function निकालना है. ध्यान रखना है यहाँ पर average cost function निकालना है, total average cost. तो if the fixed cost is 500, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एवरेज कॉस्ट के बारे में नहीं सोचता हूँ. पहले मैं क्या करता हूँ? टोटल कॉस्ट निकालता हूँ. लेट अस फाइंड टोटल कॉस्ट. सो वी नो दैट टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट. सो व्हाट वी गेट? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम सी डी एक्स. तो व्हाट इज एम सी? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 3 ई टू द पावर एक्स डी एक्स, राइट? तो अब इसको सेपरेट करो एंड सी व्हाट यू गेट. So you get integration of 2 dx
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो अब 2 को बाहर निकालो, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 3 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x, सो इट इज़ 2x प्लस 3 एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इज व्हाट, ई टू द पावर एक्स। अगेन ये क्या है, इनडेफिनिट, तो मेरे पास एक प्लस सी आएगा, तो ये बन गया मेरा टोटल कॉस्ट, ये बन गया मेरा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का वैल्यू 2x प्लस 3 ई टू द पावर एक्स। अब क्या बोला है, फिक्स कॉस्ट इज़ 500। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, अगर तुम कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करो या ना करो, तुम्हें फिक्स कॉस्ट देना पड़ेगा, जो है 500 रुपया। तो आई विल राइट हियर व्हेन x इज इक्वल टू 0, when x is equal to 0, if I don't produce anything, so my fixed cost is 500। so मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 500, बिकॉज मैं कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा 0 प्लस 0, ये देखो ये दोनों बन गया 0, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, तो ये बना 2 इंटू 0, दिस बिकम्स 3 इंटू ई टू द पावर 0 प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, सी तो सी रहेगा। तो यहाँ से वी गेट 500 इज इक्वल टू, ये 0 बन गया, and e to the power 0 क्या होता है 1, anything to the power 0 is 1, so 1 into 3 is 3 plus c, so therefore c is equal to 497। 500 minus 3 होता है 497। तो once I got the value of c, उसके बाद मैं टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूँ। so total cost is equal to 2x plus 3 e to the power x plus 497। लेकिन मुझे क्या बोला है, टोटल एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए, तो टोटल एवरेज कॉस्ट क्या होगा, हेंस टोटल एवरेज कॉस्ट। सो बेसिकली ये कॉस्ट, दिस कॉस्ट इज ऑफ व्हाट, फॉर एक्स नंबर ऑफ आउटपुट्स, राइट। तो जैसे कि अगर तुम्हें पूछता है इफ 5 पेन कॉस्ट 50 रुपीज़, what is the average cost of 1 pen, so that is what 50 by 5 करोगे, you will do 50 by 5। so in here if the total cost in producing x number of units is this thing, then what is the average cost, तो average cost हो जाएगा 2x plus 3 e to the power x plus 497 divided by x, because x is the number of units, number of outputs हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये सेपरेट करने से 2x by x प्लस 3 to the power x by x प्लस 497 by x, तो ये x गया, तो यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ, और ये x को अगर मैं ऐसे करके लिखा तो ऐसे भी लिख सकता हूँ या ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, दैट्स इट, दिस इज़ योर टोटल एवरेज कॉस्ट। तो ये है मेरा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो फिर से यहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज़ 2 प्लस 3 रूट क्यू प्लस 5 रूट क्यू, 5 बाई रूट क्यू। नाउ प्रीवियसली हम लोग ने एक्स पढ़ा था आउटपुट फंक्शन, तो यहाँ पर आउटपुट जो वेरिएबल है वो क्यू है, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, जस्ट एक्स की जगह में क्यू पुट करना है। तो यहाँ पर मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन एफ ऑफ क्यू, तो ये क्या बनेगा, वी विल गेट दिस वन बाय इंटीग्रेटिंग, एक्चुअली यहाँ पर मिस्टेक किया, ये एफ डैश एक्स नहीं होगा, इट विल बी एफ डैश क्यू, बिकॉज देखो फंक्शन में क्या है, क्यू है, देयर इज़ नो एक्स इन देयर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश क्यू, एंड दिस वॉन्ट बी डी एक्स, इट विल बी डी क्यू, बिकॉज मेरा यहाँ वेरिएबल है क्यू। तो एफ डैश क्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 रूट क्यू प्लस 5 बाई रूट क्यू डी क्यू। सो सेपरेट करते हैं, सो ये बन जाएगा, 2 बाहर कर देता हूँ डायरेक्ट, प्लस फिर से 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, रूट क्यू डी क्यू, एंड प्लस यहाँ पर 5 है, बाहर कर दिया, 1 बाई रूट क्यू डी क्यू। अब हाँ मैंने एक मिस्टेक किया, यहाँ पर डी एक्स लिख दिया, ये डी क्यू होगा, देयर विल बी नो डी एक्स इन देयर। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, सो 2 क्यू हो जाएगा, x के जगह क्यू होगा, जहाँ पर भी x लिखते हो वहाँ पर क्यू हो जाएगा, प्लस 3 रूट क्यू का मतलब क्या है, रूट क्यू का मतलब क्या है, इट मीन्स क्यू टू द पावर हाफ,
तो ये क्या बन जाएगा, क्यू टू द पावर हाफ प्लस वन डिवाइड बाय हाफ प्लस वन। उसके बाद 5, 1 बाई रूट क्यू का मतलब क्या है, 1 बाई रूट क्यू का मतलब है क्यू टू द पावर माइनस हाफ, स्क्वायर रूट है और वो नीचे है, तो ऊपर ले जाने के लिए मुझे माइनस वन पुट करना है, तो माइनस वन और वो स्क्वायर रूट का हाफ, तो ये बन गया माइनस हाफ। तो उसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, क्यू टू द पावर माइनस हाफ प्लस वन डिवाइड बाय माइनस हाफ प्लस वन। दिस इज व्हाट वी गेट। तो देखो, जो टू, अच्छा प्लस सी आएगा कांस्टेंट, तो क्या होता है प्लस सी, 3 क्यू टू द पावर हाफ प्लस वन होता है 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 5 माइनस हाफ प्लस हाफ, हाफ होता है एंड दिस वन इज हाफ। तो ठीक से लिखते हैं, प्लस सी 2q प्लस, तो 6/3 क्यू टू द पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो 10 क्यू टू द पावर हाफ प्लस सी। तो यहाँ तक आया। तो एक चीज़ अगर मैं नोट करो तो मैं ये काट सकता हूँ, सो वी गेट 2q प्लस 2q टू द पावर 3/2 प्लस 10q टू द पावर हाफ प्लस सी। तो दिस इज माई टोटल कॉस्ट फंक्शन। और यहाँ पर बोला है एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 21। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट नहीं बोला, यहाँ पर एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 21 बोला है। तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 21 का मतलब क्या है, क्यू क्या है, व्हाट इज द क्यू, क्यू इज the total output, the number of output we are creating, and fq क्या है, the total cost required to put q number of outputs। तो f1 is equal to 21 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब q का वैल्यू 1 है तब fq का जो वैल्यू है वो है 21। उसका मतलब to produce one output we have to pay the total cost is 21। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा f of 1 is equal to, जहाँ जहाँ q दिखता है वहाँ पर 1 पुट कर दो, तो 2 इंटू वन प्लस 2 इंटू वन टू द पावर 3/2 प्लस 10 इंटू वन टू द पावर हाफ प्लस सी। तो f1 का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 21। तो 21 इज इक्वल टू 2 इंटू वन इज 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 10 प्लस सी। तो कितना हो रहा है, 21 इज इक्वल टू 14 प्लस सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 7। तो c का वैल्यू 7 मिल चुका है। अब क्या करो, अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, सॉरी नॉट दिस इक्वेशन, इसका भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इस इक्वेशन में पुट कर दो और मुझे आंसर मिल जाएगा। सो एफ क्यू इज इक्वल टू 2q प्लस 2q 3/2 प्लस 10q टू द पावर हाफ प्लस 7। दैट्स माई आंसर ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन।